Hello, am I audible to all of you? Hello, is the sound audible? Yes, sir. Okay, okay. So last time we did the theory of single phase half wave uncontrolled rectifier, which had some network issue, so I couldn't do the MATLAB simulation. I'll show you the MATLAB simulation only today. Okay, then the part will be completed. Just the simulation was remaining. If anyone is doing with me, get ready with your MATLAB. Okay, I'll do the MATLAB simulation, and I gave some work with the SCR. If I'll show that if you have any problem. Then okay, I'm sharing the screen with of MATLAB. Oh, wait. First, I'll show you the basic circuit required. So I'm sharing with the PDF. Is the PDF visible to all of you? देखो. Hello. Is the PDF visible to all of you? Yes, sir. Okay. So this is the basic circuit. It's a simple one. On voltage source, we need a voltage source. We need a diode. I mean AC voltage source, obviously. AC voltage source, diode, and a load, resistive load, actually. So we'll take this simple things we need in simulation. We need a scope in here for the outcome. Scope gives the graphs. So you can say that this is the scope part. Okay. So I have already taken these things and not done the connections. So is the MATLAB screen visible to all of you? Hello? Yes, sir. Okay. So these are the basic things that I Yes, sir. showed in the circuit. Okay, okay. The AC voltage source, number one, a simple diode. Number two, resistive load. I have changed it. It was actually series RLC branch. Since we are doing a resistive load, we have taken a branch type R. Okay. And this is the scope. And there is the power guy. There will be a change in the power guy. During the simulation, I will show you. You will learn one application of the power guy. I was telling this in the last class, but due to some network problem, I had some problem doing this. Okay. So first, let me make the simple connections. Source to anode, cathode to load, then complete the circuit, this to the negative point of the AC source. Done. Simple circuit completed. This M gives the output port or the output reading of the given diode or any other use. When you have seen the SCR, this M or this sign, arrow type sign, this gives the
this is actually the output port. I'll double click on this. Double click. It will show you the block parameters of the diode. See, is the block parameter visible of the diode? Hello? I've shared the Yes, sir. block. Okay. See, in the block parameter, if you see, these are the internal already given. I'm not changing any of this. Let it be whatever it is. We'll check the graph only. And plus, there is no point of changing this. We can change the resistance. We'll change and see the resistance. I'll show you, because we'll be calculating the ID diode current for that. See, in the last line, there is a box ticked in here showing the show measurement port. M means measurement in the diode. If I untick this, see, apply, okay. Okay. If I untick this, apply, okay, see, the measurement part is gone. Okay. So if I need to know the output of the diode, we'll simply double click on this. The block parameters will come. We'll go to the last part, show measurement port. If you have to measure, tick on this, apply, okay. What are the only things that we can measure in these things? In the diode? Diode voltage and diode current. Two outputs, two measurements from the diode, simply. Now, we'll go back to the, it's a simple circuit, no complication in this, just connected in the series. Okay, now we'll show you the, go to the PDF again to check what are the graphs we are expecting. Is the PDF visible to all of you? देख लो, PDF है? Yes, sir. Okay. There are 4 graphs, obviously. Pehla, source voltage. Second one is the output voltage, VO. Third one is the diode current. It's the same. I source, ID, source current, output current, diode current. We'll see the diode current in this. We'll call it the diode current. Since we are actually doing the operation of the diode, there is no point of saying the source current. Since we are doing the diode operation, rectifier operation, actually diode is involved, we'll say it is the diode current. All of them are same in any way. Source voltage, number 1, number 2, output voltage, number 3, diode current, number 4, diode voltage. So these are the outputs. Therefore, we need how many measurement ports do we need in the scope? 4. We need 4 graphs, 4 scopes. Simple, as simple as that. So let's right click on the scope. 1, 2, 3 more. Number of input ports 4. Okay, see, there are 4 input ports in the scope. Now we are measuring 1, 2, 3 voltages and 1 current. We'll take 2 obvious voltage measurements are the source voltage measurement and the load output voltage measurement, or load same output voltage measurement. We will be needing 2 voltmeters or voltage measurement devices. Let's take them. Here, 1 voltage measurement. Since we'll be needing 2, we'll just copy and paste 1 in here. 1 in here for the output. Connected. And for the
source voltage, simple connections, simple connection. Now we need 4 measurements. We have taken 2 voltmeters. We need 2 more things. First one for the diode current, a current measurement device, or the ammeter for the diode current, and number 2 for the diode voltage. We can take 2, but there is no point of taking these 2. It will, since we have done, this is not our first class, we have done way more complicated circuits than this. You people already know that we can measure the diode current and diode voltage through this measurement device. Yes or no? Hello? हेलो? Yes, sir. तुम लोग तो पहले किए ही हो. दिस इज Yes, sir. कंपैरेटिवली वे सिंपलर सर्किट से Yes, sir. जो हम लोग कर चुके हैं इससे पहले. ये तो कुछ है ही नहीं उसके उस हिसाब से. अब टॉपिक है, इट्स इन सिलेबस, आई हैव टू शो इट, देन आई एम, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू. अगर मान लो इफ लेट्स से जैसे हम लोग कन्वेंशनल वे में हम लोग को पता है, इन कन्वेंशनल वे व्हाट डू वी नो, वी नीड एन एमीटर हियर, we need a voltmeter across these elements will increase, simple as that. For that we can remove this measurement port. It will make the circuit more complicated. See, double click. If the measurement port is off, now Control C, we give a voltmeter in here. We need a voltmeter here. यहाँ पे we need a ammeter. So go to the library browser, current measurement in here. This is the conventional way. If we go on as there is, as the circuit it is, as we know in the circuit theory part. See, series connected ammeter, parallel connected voltmeter. So voltage source, this source voltage, this is the diode voltage, this is the diode current, this is the load voltage. If you do like this, then the first one will be source voltage. The second one is according to the graphs we did in the PDF. The second one is the सर स्क्रीन रुक गया सर, लाइब्रेरी ब्राउजर ही दिखा रहा था अभी तक. अच्छा अच्छा, देखो तो अभी आया सर. ठीक ठीक. अच्छा, ये बोलना पड़ेगा क्या? देख लो, अकॉर्डिंग टू अवर कन्वेंशनल थिंग्स, ये डायोड का मैंने मेजरमेंट पोर्ट डिलीट कर दिया है. आई शोड यू द शो मेजरमेंट पोर्ट. वी हैव, ओके. तो इसका अगर डायोड करंट और डायोड वोल्टेज लेंगे, क्या करेंगे? वोल्टेज एक सिंपल है, मेजरमेंट पोर्ट लगाएंगे इधर पैरेलल में, एक सीरीज में करंट में सीरीज लगाएंगे. अच्छा, मेरा पहला वाला ग्राफ था वोल्टेज सोर्स. दिस द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्कोप. The second one was the output voltage, so this will be in here. The third one was the diode current, so third one is the diode current. हो गया खत्म. Okay, and the fourth one was the diode voltage. Diode voltage. Way more elements. So जब है तो इसको रन करवा लेते हैं एक बार, उसके बाद इसका चेंज कर देंगे. यस, एकदम सिंपल, एकदम द बेसिक थ्योरी विदाउट यूजिंग एनीथिंग आउटसाइड. हम लोग को एकदम बेसिक में वोल्टमीटर, एमीटर पता है, सोर्स पता है, सॉरी रेजिस्टेंस, आरएलसी, ये सब पता होता है.
वो तो मल्टीमीटर हो या मार्क्स डी मार्क्स ये सब कॉम्प्लिकेसी बाद में आता है, एकदम बेसिक में ऐसे। द एक्सपेरिमेंट आई टोल्ड यू, जो एससीआर करने बोला था मैं खुद से, आई टोल्ड यू टू डू लाइक दिस विदाउट यूजिंग एनीथिंग, so it will give you a clarified idea about the connections. I'll show you after this one. Okay, so let me run this one first. There will be some changes when I run this. I'll show you, and then I'll reduce the number of these things. This voltmeter ammeter will be reduced. Okay, so I'm running the experiment. फर्स्ट टाइम जब रन करते हैं थोड़ा टाइम लगता है। देखो नीचे परसेंटेज दिखा रहा है क्या? 2%। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कंपाइलिंग ये पहली बार। Compile. हाँ, कंपाइलिंग कंपाइल करेगा, इवेल्युएट करके इधर देखो लेफ्ट में, देखो एकदम नीचे कंपाइलिंग इवेल्युएटिंग ब्लॉक पैरामीटर्स, जितना ब्लॉक पैरामीटर है उसको इवेल्युएट कर। अच्छा, तुमको ब्लॉक पैरामीटर में दिखाया नहीं एक चीज का। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर देता हूँ। Okay, this is done. Let's double click on the scope. Wait for a few seconds. Scope. देखो तो ग्राफ आया है क्या? हेलो, Yes, sir. ग्राफ आया है ना? अच्छा, यहाँ पे जो Yes, sir. the same problem we had, or this ripples are coming. The graph is not smooth enough. I'll Yes, show you sir. that। जो मैं verbally बोल रहा था अभी मैं तुमको पेंट में एक थोड़ा ग्राफ का प्लॉट करके दिखा दूंगा, ठीक है? अच्छा, एक इस ये ठीक करने से पहले एक चीज मैं दिखा, तो पहले तो नेमिंग ठीक कर लेता हूँ। इट इज वोल्टेज मेजरमेंट 1, वोल्टेज मेजरमेंट ये आई चेंज द नोमेन। अच्छा, अच्छा कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर चेंज कर लेते हैं, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सी, फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो ये है क्या? सोर्स वोल्टेज, source voltage, this is diode voltage, diode current, and this is output, sorry, output voltage, OPV. अच्छा, आया स्कोप? स्कोप में देखो नाम चेंज कर, दिस इज फर्स्ट वन इज द सोर्स वोल्टेज, द सेकंड वन इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द डायोड करंट। स्कोप आया है ना? ग्राफ आया है तो? हेलो, I have shared the graph. Is the graph visible to all of you? हेलो, Yes, sir. ओके ओके। नहीं, कभी कंफर्म कर देना, क्योंकि नेट का अगर दिक्कत होगा, इफ यू कैन नॉट लिसन देन आई कैन नॉट से, तो पूछूंगा जब बोल देना मुझको। सोर्स वोल्टेज, आउटपुट, डायोड करंट, और ये हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं, डायोड वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पे देखो सोर्स वोल्टेज का पीक कितना है? 100 वोल्ट्स, ठीक है, और आउटपुट भी 100 वोल्ट, या डायोड वोल्ट का है 20 वोल्ट्स, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस रखा था 5 ओम, 5, हाँ 5 ओम। दिस इज फॉर आईडी का वैल्यू कितना है? VS/R, सोर्स वोल्टेज बाय द रेजिस्टेंस। सो मैंने जब लिया था, इट इज फॉर द सिंपल कैलकुलेशन, आई टुक 100 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट्स, 5 ओम्स। सी, ये कुछ नहीं, फॉर योर सिंपल कैलकुलेशन। द ब्लॉक पैरामीटर ऑफ एसी वोल्टेज विजिबल है? हेलो, Yes, sir. ठीक, एसी का ब्लॉक पैरामीटर देखो 100 वोल्ट लिया था मैंने, 100 वोल्ट्स, और
लो सेकंड, लोड का ब्लॉक पैरामीटर लिया था मैंने, रेजिस्टेंस लिया था 5 ओम, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो इन द टू सी इन द ग्राफ में तो उनको कॉम्प्लिकेशन मुझको सिर्फ देखना है। तो इट इज 100/5, 100/5, 100/5 सी 20, peak diode current is 20. Now the next step, what we have to do is to remove the ripples and make the graph smooth. ये एक प्रॉब्लम आ गया है, चेंज कर लेते हैं इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे we have seen the operation, we have used power guy, but you have not seen the operation of power guy. So see, the power guy is in continuous mode. यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे, it will change from continuous, you can see that we can do this, you can take the discrete mode. ब्लॉक पैरामीटर दिख रहा है क्या? देखो तो पावर गाई का आया है ब्लॉक पैरामीटर। Yes, sir. ओके, कंटिन्यूअस था पहले ऐसे, इसको हम क्लिक करेंगे, डिस्क्रीट कर लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई ओके, ये एक चेंज हुआ। नाउ we'll see what change occurs when we change the block parameter, that is when we change the mode of power guy from continuous to discrete. Simple. Double click on the scope, देखो तो स्कोप देखो आया है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. okay, okay. So this is what the graph is expected to be. हमको एक्सपेक्टेड ग्राफ कैसा है, ऐसा स्मूथ। हम लोग कॉपी में, किताब में जब देखते हैं या यूट्यूब में देखते हैं, कहीं पे भी कोई भी सोर्स से, स्टडी सोर्स से देखते हैं, इट इज ऑलवेज दिस स्मूथ, एंड दिस इज ए डिस्क्रीट फॉर्म। मैं डिस्क्रीट कंटिन्यूअस के एक तुमको प्लॉट करके दिखाता हूँ, एक सिंपल फ्री हैंड प्लॉट करके, टू रिमूव दिस डाउट फ्रॉम यू। अच्छा, यहाँ पे जब कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एकदम एक्यूरेट देख रहा है मेरा पीक, मैक्सिमम है 100 वोल्ट, यहाँ पे एकदम टच कर रहा है, देखो 20 वोल्ट में, ठीक है। अब उसको कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल में डिफरेंस बताओ तो, बोलो रे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस सिग्नल एंड ए डिस्क्रीट सिग्नल, बताओ। हेलो सर कंटिन्यूअस का प्लॉट सर स्मूथ रहता है सर, मतलब हर इंस्टेंट पे उसका वैल्यू मिलता है, लेकिन प्लॉट डिस्क्रीट में स्मूथ रहता है ये पर्टिकुलर मत इंटरवल बोलो, पे ही उसका वैल्यू मिलता है। प्लॉट स्मूथ रहता है ये मत बोलो, जस्ट सिग्नल का डिफरेंस क्या है। सर हर इंस्टेंट पे सर हर इंस्टेंट पे सर उसका मैग्नीट्यूड मिलता है सर सिग्नल का, किस में? और डिस्क्रीट में सर हर इंस्टेंट पे नहीं मिलता सर। हर इंस्टेंट में नहीं मिलता, ठीक। तो मान लो ये एक, मैं फ्री हैंड दिखा रहा हूँ एक, तो तुमको मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ तुमको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं, मतलब क्यों वहां पे रिपल आ रहा था। मान लो ये ग्राफ है, ये थोड़ा टेढ़ा मेरा आएगा, जस्ट दिखाने के लिए कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है। मान लो ये एक वेव है, आई एम नॉट शोइंग यू द फुल वेव, ठीक है, एक ही से हो जाएगा। ऊपर वाला देखो, मान लो ये साइन वेव का आधा है, दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड टू कम, ऐसा एक्सपेक्टेड है ना। अब डिस्क्रीट में एट ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम तुम्हारा ये दिखाएगा, मैग्नीट्यूड जितना है वो दिखाएगा। तो मान लो इस टाइम में दिखा रहा है, कुंदन कुमार कुछ बोलोगे क्या? कुंदन, कुंदन, कुंदन नहीं सर, कुमार, नहीं सर, वो हो गया सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ठीक है। नहीं। यहाँ पे कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। देखो थोड़ा ठीक से, जब डिस्क्रीट में 1 इंस्टेंट, 2 इंस्टेंट, 3 इंस्टेंट ऐसा आता है ना ग्राफ,
ऐसा ना दिखता है, मतलब इस टाइम इंस्टेंट में इतना है, इसमें इतना है, यहाँ पे इतना है। डिस्क्रीट का जब ग्राफ करते हो, मतलब मान लो साइन वेव का प्लॉट कर रहे हो, ऐसे होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस सर। ठीक। यस सर। अब जब मतलब हम इस टाइम इंस्टेंट में देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, हम इस अब ग्राफ जब करोगे, मान लो तुम डिस्क्रीट टाइम इंटरवल के रीडिंग लिए, रीडिंग लेके जब तुम ग्राफ बनाओगे, ग्राफ थोड़ा ना ऐसा आता है, ग्राफ तो ऐसा आता है ऊपर वाला का जैसा, ज्वाइन कर दोगे। नाउ जैसे तुम लोग मान लो लैब में रीडिंग लेते हो, लैब में रीडिंग लेके कोई ग्राफ बनाते हो, तब तुम 5 गो रीडिंग लिए, अब ग्राफ में यू हैव गॉट 5 पॉइंट्स। मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे तुमको यहाँ एक पॉइंट मिला, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट मिला, तो ग्राफ तुम कैसा बनाओगे, ऐसे जोड़ नहीं दोगे। तो नेचर ऑफ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू इज यू इज लाइक दिस। ठीक है, सेम तुम जब इसमें करोगे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब पॉइंट लिए, तो जब नेचर ऑफ द ग्राफ निकालोगे, ओवरऑल नेचर ऑफ द ग्राफ, तब इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक, ये फॉर ब्लैक वन इज फॉर डिस्क्रीट डी। अब मान लो कंटिन्यूअस में हर एक इंटरवल का मतलब क्या है, लेट्स, मैं लाल से तुमको कंटिन्यूअस दिखा। मान लो यहाँ पे है कि यहाँ पे एक पॉइंट तुम्हारा आ गया, शूट कर गया, यहाँ पे आया, एक पॉइंट आया यहाँ पे, मान लो राइट में ग्राफ देखो, एक ऐसे ऐसे आया, एक पॉइंट आ गया बीच में यहाँ पे, और यहाँ पे जो तुम्हारे रीडिंग के बीच में है, ये दोनों तुम्हारे रीडिंग के बीच में है ना रे, तुम्हारे ये पॉइंट में रीडिंग है, ये पॉइंट में रीडिंग है, तुम्हारे रीडिंग में बीच बीच में आ गया। अब कंटिन्यूअस जब देखोगे, द ग्राफ, व्हाट इज द एक्चुअल ग्राफ इज सपोज्ड टू बी, द एक्चुअल ग्राफ इज सपोज्ड टू बी से लाइक दिस, फिर यहां से यहां एकदम एक्चुअल, एकदम मतलब हर एक पॉइंट को अगर लेंगे तो ऐसा आना चाहिए कि नहीं, बताओ तो। रेड वन इज फॉर कंटिन्यूअस। यस सर। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस अगर समझ में नहीं आया कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट का, तो पूछो मुझको, मैं बोल दूंगा फिर से, कोई है। और इसका ऐसे 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 यहाँ से यहाँ पे एक बार आना चाहिए, फिर यहाँ से फिर ऐसे 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 ऐसा आना चाहिए। लेकिन सिंस वी आर रीडिंग दिस इन एन इंटरवल, मान लो 0.2 सेकंड के इंटरवल में कर रहे हैं, तो 0.1 पॉइंट क्या कहते हैं 0.2 0.4 0.6 0.8, उसके बीच में अगर कोई आ गया, हमारे रीडिंग में तो आएगा नहीं ना। लेकिन एक्यूरेटली, एकदम एक्यूरेटली अगर देखेंगे, कंटिन्यूअस मतलब हर एक इंस्टेंट का एक्यूरेटली अगर देखेंगे, दिस इज सपोज्ड टू बी लाइक दिस। थोड़ा बहुत पिक आ ही सकता है। कोई किसी को कुछ डाउट ये जगह में बोल दो, क्योंकि बाकी में कुछ रहेगा नहीं। एक थोड़ा सा डाउट इसी में हो सकता है, बोलो किसी को कुछ। नो सर। तुम्हारा और किसी का कुछ। सरोज, क्वेश्चन मैन। अच्छा रोज कहाँ रे, सरोज रिप्लाई नहीं दे रहा आज। राहुल भारती। हेलो। हाँ सरोज, क्लियर हुआ है ये वाला। यस सर। शाबाश। यस सर। ठीक ठीक। मीनाक्षी, मीनाक्षी यस सर। तुम कर रहे हो साथ में, यस सर। मतलब मैटलैब कर रहे हो साथ में, क्या बोले सर? सिमुलेशन कर रहे हो तुम कि नहीं कर रहे हो, कि सिर्फ देख रहे हो? सर। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया है? कर रहे हैं सर। ये डिस्क्रीट कंटीन्यूअस समझ में यस आया है? सर। ठीक ठीक, ये एक ही जगह थोड़ा सा Yes, डाउट हो sir. सकता है। ठीक ठीक, ओके। अब मैं मैटलैब में वापस जाता हूँ। अच्छा अभिजीत, यस सर। तुम्हारा में तुम जब कर रहे थे, तुम्हारा डिस्क्रीट कंटीन्यूअस दोनों सेम आ रहा है क्या? देखो तो ग्राफ। हाँ सर, दोनों सेम आ रहा था। दोनों सेम आ रहे, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम जब टेक्नोलॉजी एडवांस करते हैं, किस लिए करते हैं? टू गेट ए बेटर आउटपुट, है ना? अब तुम्हारा उस हिसाब से
तुम्हारा जब दोनों में सेम दिखा रहा है, मेरा में तो बेटर आउटपुट के लिए स्मूथ दिखाना चाहिए, मेरा में दोनों अलग अलग क्यों दिखा रहा है? यस सर। अब मान लो तुम्हारा जो मतलब तो वर्जन तुम यूज कर रहे हो उसका अपडेट में ये है, अब मशीन का जो तुम आउटपुट Yes. निकालो, मान लो डायोड से तुम निकाल रहे हो जब, देन द करंट इज सपोज टू बी स्मूथ, लेकिन मैं यहाँ डायोड कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे मैटलैब का काम कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो जो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ द सॉफ्टवेयर? टू गेट यू ए बेटर आइडिया अबाउट व्हाट इज द ग्राफ इज सपोज टू बी। ग्राफ कैसा आएगा वो दिखाने का जो डेवलपमेंट मैटलैब किया है। हाँ, डिस्क्रीट जैसे तुम्हारे वर्जन में डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का प्रॉपर्ली डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, नया वर्जन में मैटलैब का अपडेट क्या हुआ है, तुमको डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूअस सिग्नल का प्रॉपर आउटपुट दिख रहा है समझ? क्यों यहाँ पे दोगो है और अपडेट कहाँ पे हुआ है यस सर। सॉफ्टवेयर में, यस। यह बात। अब हम लोग जो पहले किए हैं थोड़ा लेवल अप वाला, डिमार्क्स मार्क्स ये सब लेके आए थे, वो वाला लेके आएंगे, ये सब हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमको पता है दिस इज द सिंपलर वर्जन। डिलीट दिस सिंपली। यहाँ पे दोगो लेना पड़ा इसलिए क्योंकि यू डोंट हैव द मेजरमेंट पोर्ट, यहाँ पे हम मेजरमेंट पोर्ट डायोड के डिलीट कर दिए। अब डिलीट कर दिए हैं तो आसान सा बात है, कहीं से तो मेजरमेंट पोर्ट लेना पड़ेगा। जब जो तुम्हारे पास है, जो वर्जन तुम लोग के पास है, उसमें ऐसा डायोड तो है नहीं शायद, है क्या? मैंने जो दिखाया था एम वाला। हेलो अभिजीत, यस सर। जो डायोड तुम्हारे पास आ रहा था, यस सर। ऐसा आ रहा था क्या कि पहले वाला का जैसा आ रहा था? सर उसमें भी है सर। हाँ सर, आ है? रहा था। मिला सर मिला है? आ रहा है सर, एम भी है। मिला है? यस सर। वाह, तब तो सही हाँ है। सर। ठीक 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 ठीक, तब सर बढ़िया। हाँ सर, ऑप्शन नहीं देखे थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, इसीलिए तो बोले पहले तुम टाइप करके, मैं जैसा टाइप करके पैरामीटर ढूंढ रहा था लाइब्रेरी से, तुम लोग टाइप करके मत ढूंढना, तुम लोग पहले है कहाँ से क्या है वो ढूंढो, टाइप करके बाद में होगा, जब तुमको पता चल जाएगा कहाँ क्या क्या है, कहाँ चाहिए तुमको, तब तुम टाइप करके ढूंढो। पहले इसीलिए बोलो पहले तुम ढूंढो, पहले तुम नॉर्मल सर्किट बनाओ, डम मार्क्स डिमार्क्स ये सब कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ। मैंने वायरिंग कम करने के लिए दिखाया था। यहाँ पे देखो कितना पैरामीटर आ गया था, यहाँ पे मैं सिंपल लेगो, कौन सा लाऊं बोलो? टू इनपुट सिंगल आउटपुट करने के लिए क्या चाहिए मुझको? सर डीमक्स। डीमक्स सर। डिमार्क्स। अरे नेट कट गया था थोड़ा सा शायद। अच्छा, कहाँ गया? हम्म, देखो तो है डिमार्क्स। यस सर। ठीक, डिमार्क्स में अगर डिमार्क्स में इसको कनेक्ट करता है पहले, और पहले तो ये सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर वो मार्क्स डिमार्क्स होता रहेगा। सर्किट इज इम्पोर्टेंट। डिमार्क्स में डबल क्लिक करेंगे, ऑप्शन बार टू आउटपुट कोड दिखा रहा था, एक हो गया यहाँ पे कर दिए, एक यहाँ पे बताओ। कितना कुछ कम हो गया है। सेम आया है मार्क्स डिमार्क्स लेके, सोर्स वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और डिमार्क्स वन डिमार्क्स टू। अच्छा, डिमार्क्स वन डिमार्क्स टू चेंज नहीं किया था ना। वन डिमार्क्स वन इज डायोड करंट, डिमार्क्स टू इज डायोड वोल्टेज।
डायोड करंट देखो सिंपल हमको जैसा चाहिए, सोर्स वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, डायोड करंट, डायोड वोल्टेज आ गया, हो गया खत्म इसका। किसी को कोई Yes, डाउट sir. सिमुलेशन में? होना नहीं चाहिए No, क्योंकि sir. इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज कर चुके हैं, इसके बाद भी करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे और एडवांस कराऊंगा मैं। एसीआर का नया नया ऑपरेशन दिखा दूंगा, 2-3 गो मेरे पास है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग क्लास में ऐसा ऐसा किया हो उस टाइप का दिखाने के लिए, तो मुझको थोड़ा देखना पड़ेगा सिमुलेशन। अच्छा, किसी को कोई डाउट है रे? मीनाक्षी आया? मीनाक्षी सर कर रहे सर, कनेक्शन कर रहे। अभी कनेक्शन कर रहे हैं? कृष्णदेव केडी यस सर। तुम इतना दिन बाद आया है वापस? हाँ? नहीं सर, हो जाते हैं तुमको तो मतलब 2-3 हफ्ता सर। मेरे दिखे। पास अवेलेबल भी नहीं है सर, कौन सी लैपटॉप अवेलेबल? नहीं है सर मेरे पास। अरे यार, अच्छा ठीक है, तो देखोगे नहीं मतलब लैपटॉप नहीं है तो मतलब देखना ही नहीं है। तुम लोग मशीन का एक्सपेरिमेंट नहीं देख रहे थे? तुम्हारे पास के इंडक्शन मोटर है घर में? निधि निधि कुमारी यस सर, तुम्हारे पास है ना मतलब यस सर, लैपटॉप? यस सर, लैपटॉप है सर। इंस्टॉल किए हो? इंस्टॉलेशन में से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था सर, आज मीनाक्षी से पूछेंगे। इंस्टॉल करके प्रैक्टिस हो करो, गया था। बहुत सारा दिखा दिए। अच्छा ये सर वाला ये क्या? नया वाला भेज दिया ना सर, उसमें मजा नहीं आ रहा था। नया वाला? नया वाला पहली बात तो यह है तो कि मेरे मतलब पास। होगा सर इंस्टॉल ये वाला? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो बोलो। सर ये वाला इंस्टॉल नहीं होगा सर हम लोग? ये वाला इंस्टॉल, ये वाला सर इंस्टॉल ये सर नया वाला इंस्टॉल नहीं होगा सर? इंस्टॉल क्यों नहीं होगा? थोड़ा चांस है लैपटॉप स्लो हो जाएगा। और भेज दीजिए, मतलब मैं तुमको भेज नहीं सकता इसलिए क्योंकि मैंने ही कॉपी करके लाया है, तो ये सोर्स एक्चुअली कहाँ पे है मुझको नहीं पता। मैंने कॉपी करके घर में यूज कर रहा था मैं, मुझको अपना मेरा कंपैरेटिवली नया ही लैपटॉप है, कुछ है नहीं मेरे पास लैपटॉप में, ठीक है। लेकिन मुझको मेरा 4 GB रैम था पहले, मुझको रैम बढ़ाना पड़ा, रैम बढ़ा के मैंने 8 GB किया, अभी अभी ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो फर्स्ट क्लास में तुम लोग देखे थे कितना स्पीड में काम कर रहा था। इसका साइज इतना ही बड़ा है कि सर देखो। रैम रैम बढ़ जाता है सर? रेड रैम रैम लेके जाना कंप्यूटर की दुकान में, रैम बढ़ा देगा। तो सर या तो उसका कितना सर प्राइस कैसे लेते हैं सर?